ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ। ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ कहते हैं, सुनो भाई, एक दिन श्री बाबा जी करतारपुर धर्मसाल विच बैठे से, ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਾਂ सचखंड में श्री निरंकार जी के चरण कमला में चलिए। ਤਾਂ उधर श्री ठाकुर जी अंतरजामी घट घट की जानन हारे, भगत वत्सल भगतां के अधीन और भगतां दी रखण हारे, सचखंड में सभा लगाए बैठे थे। हुण आ जिहड़ियां सारियां गल्लां ना, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਡੇ ਫਰੇਬ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ, ਇੱਕਦਮ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਲਪਤ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। अंतर्जामी घट घट की जानन हारे, भगत वत्सल भगतां के अधीन और भगतां दी रखण हारे, सचखंड में सभा लगाए बैठे थे। और सब भगत आपो अपने स्थानां उपर हाथ जोड़ी खड़े हन। इतने में श्री ठाकुर जी बोले, सुनो भगतो, जो नानक भगत मेरा प्यारा है सो मेरे लोक को आवना चाहता है। ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ में ਵਸੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਏ जी। ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ जी अपने निज सेवकों को हुक्म किया कि मेरे भगत नानक को बड़े आदर सत्कार सेती मेरे पास ले आओ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ श्री गुरु नानक जी के पास आए, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ
गधी गेड़ पाया होया है। हथ जोड़ के अरदास कीती है, पार ब्रह्म जी नानक तेरा बड़ा भगत है, जिस तरह उसके मन में वसी है तिवें ही करिए जी। तां निरंकार जी अपने निज सेवकों को हुक्म किया कि मेरे भगत नानक को बड़े आदर सत्कार सेती मेरे पास ले आओ। तो उन्होंने सेवकों श्री गुरु नानक जी के पास आए, हाथ जोड़ के अरदास कीती है, नानक भगत जी तुम्हारे मन में वसी है कि श्री निरंकार जी के पास जावें। सो ठाकुर जी ने तुम्हारे मन की आशा को जानकर हमको हुक्म दिया है, आप सचखंड में चलें। ठाकुर जी हमारे को भेजा है, रब ने सानू भेजा है। तुम्हारे रहन वाले मंदिर सचखंड में बने हैं, आप आए के देख जाओ जी। बाबा जी कह मान लो उत्थे मकान बने हुए ने, मंदिर महल कोठियां पईयां हुई ने। बाबा जी कहा मेरे प्रभु जी आप बगैर मेरे मन की कौन जाने, सो मैं बलिहार जावा अपने स्वामी उपरों। ये बात कहकर खड़े हुए जी सेवकों के साथ जाए कर ठाकुर जी के चरणों पर नमस्कार करी ते हाथ जोड़ खड़े हुए। ता ठाकुर जी कहा आओ नानक तू मेरा पूर्ण भगत है, राजी खुशी है। हे नानक तेरे जी में इत्थे आवने के वसी तद तेरे को बुलाया है। ता श्री बाबा जी कहा हे निरंकार जी मैं बलिहार जावा जी, आप दे नाम उपरों मेरे मन दी बिना आप दे होर कौन जाने जी। और मैं कौन कीट हाँ, जो कुछ है आप दे ही हाथ है जी, जो चाहो सो करो जी। ता श्री ठाकुर जी कहा हे नानक जी तू अंगद को यही समझावना कि सब संसार को मेरा मेरे नाम नाल लावे। हुण यह जिहड़ा रब है ना, आ वाला जिहड़ा सचखंड 'च बैठा, इनू अपने नाम की बहुत भुख है, अपनी वडियाई की भुख है। पर जिहड़ा गुरु नानक जां गुरमत वाला रब है ना, वो जिहड़ी शक्ति है, वड्डा दाता तिल ना तमाए, उसनू जरा ज नहीं तमानू, उसनू नहीं चाहिए कि वह कोई नाम जपे, वही कोई वडियाई करे। वड्डा दाता तिल ना तमाए। दूजी जगह असी सौदर के पाठ में पढ़ते हाँ, जे सब मिल के आखण पाहे, सारे संसार के लोग मिल के तेरा नाम जपण, वड्डा ना होवे, तू वड्डा नहीं हुंदा। पर जे कोई भी ना जपे घाट ना जाए, भाव कोई फर्क उसनू नहीं पैंदा। पर आ जिहड़ा रब है ना, वो कहंदा भी तुसी भाई लैणा नू समझा देना कि सब संसार को मेरे नाम नाल लावे, मेरे नाम नाल जोड़े। ते जो प्राणी तेरे वचना को सुनेगा और समझेगा और कमावेगा, मैं तिसका भला करूँगा। तो श्री गुरु नानक जी ने सचखंड विच जाए के श्री निरंकार जी की वार्ता समझी ते पार ब्रह्म जी की आज्ञा लेके मातलोक विच आए के श्री गुरु अंगद जी को सदवाए कर सब समझाए दिती। और 5 पैसे ते एक नलिएर श्री गुरु अंगद देव जी के आगे रख के श्री गुरु नानक जी परिक्रमा करके अंगद जी अगे मत्था टेकिया। तो अंगद जी बाबे जी अगे मत्था टेकिया अते कहा गरीब नवाज जी तुसी कारण होए कर मेरे चरणों पर मत्था टेकिया है, सो इसको तो कुष्ट पवेगा, पाप कोढ़ हो जाएगा। मेरे चरणों तुम मत्था टेकिया, इस तो कुष्ट पवेगा। मैं आजिज निवाणा हूँ ता वचन हुआ अंगद, तू अपने स्वरूप को पछाण, जो मेरा तेरा शरीर सब 5 तत्व का है, ते चैतन कला भी तेरी मेरी तेरी एक है। जैसे एक सूरज है ते घड़ा 100 होवे ते सब में प्रकाश एक समान करता है, तैसे ही वो परमात्मा सब शरीरों में एक जैसा पासदा है। तू तो सब ज्ञान के चानन वाला है ते अचरजा की रीत है, सतगुर सिख दा भाव रख के आए हैं ते तुहाडा वचन भी अनथा नहीं करना। भाव गुरु अंगद देव जी ने कह दिता कि मैं कोड़ ही कोड़ होऊगा, वो कहते तुहाडा वचन भी अटल है, इसका मतलब कोड़ होएगा।
कुछ रोग चरण के अंगूठे में रहेगा, सो परमेश्वर को चित्त करावेगा। ते ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਏ, ਸੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਅੰਗਦ को अपने गले लगाया ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ पर बैठा ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ को कहा भाई इस ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, मेरा रूप जानना। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਿਆਂ को बुलाया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਦਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਖਡੂਰ में चला जा, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰੂਦੀ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਵਕਤ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਵਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पूर्ण करन। पर उस समय श्री बाबे जी के चित्त में चाव सी के कब चल कर श्री पार ब्रह्म जी के चरना कमलों का दर्शन करिए। जब अस्सू का महीना आया, कहना मतलब जो गुरु नानक पातशाह ज्योति जो समाए उदों भाई लहणा खडूर साहब आ चुके सन, वो उत्थे हाज़र नहीं सन। जदों अस्सू का महीना आया तो फिर वो तैयारी कर ली कि सारी समग्री इकट्तर करो, असी अज समाना है, चौंका दिओ, आसन मान लो पूरा मतलब पोचा वगैरह लाओ, गोहा लिया के सारी सफाई करो। तो उधरों श्री चंद ते लक्ष्मी दास नूं बुलाउण लई बंदे भेज दिते। तैयारी कीती है तो श्री चंद ते लक्ष्मी दास ढिल मठ कीती ते आखण लगे, चंगे भले क्यों कर समावदे हन ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਣੀ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਵਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਏ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਾ ਚਲਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਵਣਗੇ। ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੱਤਰੀ महाजन पंच जन सिख संगत सब इकट्ठे आवन ते जो दर्शन करे सो निहाल हो जावे। श्री बाबा जी का तेज प्रकाश हो रहा है, जैसे 16 कला दा चंद्रमा चढ़ता है। कीर्तन पाठ होवे ते निरंकार जी के नाम की कनकोर लग रही है। तां श्री बाबे जी का परिवार सब आन बैठा है ते श्री चंद लक्ष्मी दास जी को सदन गए। सो उन्हां ढिल कीती आए नहीं ते कहण लगे, जिहा अगले दिन समाया सी सो ओहो जिहा हुण समावेगा। तां गुरु जी सेवकां को कहा, वेड़े विच पृथ्वी लेपो। तां सेवकां चौंका देकर आसन विछाया ते होर समग्री पास आण रखी। तां 1.5 पहर रात गई तां सेवकां बेटियां को जाए कर कहा कि तुम्हारी ढिल है, नहीं तो बाबा जी समावने को तैयार हन। तो उनकी ढिल जान के श्री बाबा जी समा गए। तो पिछों बेटे आए देखण तो सच ही समा गए हन, भाव ज्योति जो समा गए हन। नेत्र मुंद लए तो श्री चंद लक्ष्मी दास हथ जोड़ के लगे बेनती करन, हे श्री बाबा जी
करतार दी दुहाई है एक 4 घड़ियां असां नाल गल्लां कीते बगैर ना जावीं। तां श्री बाबा जी करतार दी दुहाई मन के नेत्र खोल के उठ बैठे ते आखण लगे, कहो पुत्र तुसां 4 घड़ियां मंगियां, जे कदी 4 युग मंगदे तां असीं 4 युग रहिंदे, पर बच्चा तुसां दे वस नहीं, मेरे साहिब दा हुक्म ही इवें है, हुण तुसां जो गल्लां करनियां हन सो करो। तां बेटियां कहा, जी सब कुछ आप जाणदे हो। तां गुरु बाबे जी कहा, बेटा जो तुहाडे जी आउंदा है सो आखो। तां बेटियां कहा, श्री बाबा जी असी भी तां तेरे पुत्र सां, कुछ साडे वल भी मेहर करनी सी। असल विच ये सारे जो सन बेटे यही समझते सन ये कमाई का साधन है। गुरगद्दी जिहड़ी है चढ़ावा कमाई का साधन है, तो हुण गुरगद्दी मिल गई भाई लहणा नूं, साडा की बनेगा, हद हो गई। गुरु बाबा तो सारी उम्र काम करता रहा, प्रचार फेरियां तो इलावा जदों भी वो पिंड टिकिया पहला मझां चारदा सी, फिर गुरु बाबे ने हट्टी की है, गुरु बाबे ने नौकरी की है, गुरु बाबे ने खेती 2 बार की, एक बार करतारपुर तो पहली बार की है राय भोज की तलवंडी। सारी उम्र बाबा दे काम करता रहा और पुत्रां नूं बेलियां नूं रोटी खानी सी, वो कहंदे साडा की बनूगा। बेटियां कहा, श्री बाबा जी असी भी तां तेरे पुत्र सां, कुछ साडे वल भी मेहर करनी सी, ते वडियाई तां सारी लहणे को दे दिती है, पर अच्छा जी साडे कुछ वस नहीं, तो साडी रजाए सो असां मननी है। मतलब किद्दां उन्होंने भी निमरता भी दिखा दिता। असल में सारे ग्रंथ ये प्रिथी चंदियाँ श्री चंदियाँ ये सारे जिहड़े गुरु दे विपरीत सन, उन्हां दे अगों वंशजां ने जां उन्हां दे चहेत्यां ने लिखे आ। पिछले दरवाजे तो हुण पूरा तो चीज़ रब नहीं सी मटिए नहीं सन सकते, और पिछले दरवाजों इन्हां नूं भी सत्कार, इन्हां नूं भी वडियाई, इन्हां दी पूजा दा भी ध्यान इन्हां ग्रंथां विच रखिया गया। पहली गल ते मर गए जी पै, ये गुरमत दा कोई विधान नहीं है, बंदा मर गया सो मर गया, पर सानू गधी गेड़ विच पाउणा सी। श्री चंद ने कहा भी 4 घड़ियां लिए गुरु नानक नूं जींदा करता। ये देखो छोटी छोटी गल नाल असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं पूर्ण तौर ते तीली लाने आ, रद्द कर दिंदे आ, जाने अणजाने विच अवेसले ही असीं सब कुछ करी जाने आ। ज्योति जो समा गए फिर वापस आ गए, कमाल है। ये शरीर जब मर जाए, हार्ट कम करना बंद कर दे, थोड़े समय च सैल सारे डेड हो जाते हैं। जिहड़ा ब्लड पंप करता है, सिल्लां दी खुराक बनती है, सफाई होंदी है, वो सिल जिउंदे आ। जो सर्कुलेशन बंद हो गया शरीर ठंडा हो जाता, फिर जिउंदे हो गए। क्योंकि इत्थे तां सिर्फ कपोल कहानियां ने, और असीं वो कपोल कहानियां नूं ही धर्म मन्नी बैठे हैं। तां वडियाई तां सारी लहणे को दे दिती है, पर अच्छा जी साडे कुछ वस नहीं, तो साडी रजाए सो असां मननी है। साडा कुछ वस नहीं चलदा, तां निमर हो के दोहां अरदास कीती। तां श्री बाबे जी कहा, सुनो बेटा ये वडियाई दी दात तां किसे दे हथ नाहीं, जिसे परमेश्वर देवे उसनूं मिलदी है। जो कोई कहे जो मैं जतन करके लवां तां नहीं मिलदी। सेवा कीतियां सूरवीर संग्राम कीतियां ना, सुरती ज्ञान ध्यान कीतियां मिलदी है। शस्त्र पढ़े नहीं हथ आउंदी, पुराणा पढ़िया हथ नहीं आउंदी, ते ना तीर्थां दे तप कीतियां मिलदी है। बेटा ये करते पुरख ने रचना रची है, सो तिसने ये लिख छड़िया है। जमना मरना सुख दुख आवन जाना, सो ये वडियाई उसके ही हाथ है, होर किसे दे हाथ नहीं। ते बच्चा जिसनों करतार दिती है वो ले गया है। तां फिर लक्ष्मी दास कहा, बाबा जी जे असी तेरे पुत्र रोटी कपड़े थी बगैर आजिज़ होएगे, क्योंकि काम नहीं कर सकते तुसीं। रब ने तो हाथ दिते आ, पैर दिते आ, शरीर दिता, काम करो। बेलड़ हो के खाना, मतलब सिੱਖੀ ਨੂੰ बेलड़ां दी ਢਾਣੀ इन्हां साखीकारां ने बना दिता भी ਜਿਹੜਾ सिख हो गया काम करन दी कोई लोड़ नहीं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਜਿਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਟੇਕੇਗਾ? ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬਾਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਉਜੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਚੰਗ ਮਾਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਭ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਰਨ ਸਰਵਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੜ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੜ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ कह रहे ने, भाई बुढ़िया, जैसा श्री परमेश्वर जी अगाध है तैसे ही परमेश्वर का नाम भी अगाध है। पर बाबा जी पद्म आसन बैठ के वाहिगुरु जी के नाम का महत्व कहा है। सतयुग में वासुदेव वावा ले लिया, द्वापर में हरि हाहा ले लिया,
रूप त्रेते युग राम दशरथ का पुत्र अवतार धारण किया है, अते कलयुग में गोविंद रूप परमेश्वर धारण किया। वाह 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 हाहा रारा गग्गा, ये उल्टा कर दिता। गग्गा बाद च आया, रारा बाद च आना सी, गग्गा पहला आ गया, ये सारा उल्टा करता। रारा राम ते वाहे गुरु, रारा अखीर च मान लो भन तोड़ करके इस नूं उन्हां ने सारे जिहड़े अवतारां दे नां ते वाहिगुरू शब्द की घाड़त कढ़ दित्ती। भाई बुढ़िया, इन्हां युगां विच परमेश्वर ने 4 अवतार धार के 4 नाम कीते। अब उन चारों नामों से एक एक अक्षर लेकर श्री ठाकर जी का सारे संसार को आप जपने का हुक्म किया है। सो परमेश्वर सत चित आनंद रूप तिन्ना गुणा थी रहत है। जन्म मरण हान लाभ दुख सुख इन्हां विकारां थी रहत है। जो वाहिगुरु नाम को जपेगा सो परमेश्वर में जाए समावेगा, सो वाहिगुरु हो जावेगा। तो फिर बाबे जी पढ़दा तनाई दिता। हुण मैं वाहिगुरु दे उत्ते गल कर लवां। जेकर इस साखी नूं, इस किताब नूं सच मनीए, फिर सचमुच गुरु अंगद देव जी के सामने लिखी लिखवाई गई है, सचमुच गुरु नानक पातशाह ने वाहिगुरु शब्द नूं दृढ़ कराया है, तो फिर भाई एक गल बड़ी स्पष्ट है। गुरु अंगद पातशाह दे जिहड़े श्लोक ने 63 श्लोक ने, उन्हां विच किते एक बार तो गुरु अंगद पातशाह ने वाहिगुरू शब्द का जिक्र करना सी। गुरु अमरदास जी की बेअंत बाणी है, उन्होंने एक बार तो वाहिगुरू शब्द का जिक्र करना सी। गुरु रामदास जी अपनी बाणी में जिक्र कर देंदे, गुरु अर्जन पातशाह ही कर देंदे। भट्टां दे समैयां विच वाहिगुरू शब्द का जिक्र है, पर तुहानूं सुन के हैरानगी होवेगी कि जदों गुरु ग्रंथ साहब विच वाहिगुरू शब्द आ चुका सी, उस दे बावजूद भी गुरु तेग बहादुर ने अपनी बाणी विच एक बार भी वाहिगुरू शब्द का जिक्र नहीं किया। ये जबरदस्ती सानू हिंदू देवी देवतियां नाल जोड़न लई, उन्हां दे अवतारां नाल जोड़न लई सारे गुरु साहबान ने अपनी जिंदगी विच कदी भी किसी शब्द नूं ये नहीं कहा कि ये रब दा लिखाएगा। ये खास शब्द है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच उस वाहिद शक्ति बारे कोई अजिहा शब्द नहीं कहा गया जिसनूं साडे सतगुरां ने खास कहा होवे भी आ रब दा नाम है। अगर किसी नूं लभे मैनू दस दिओ। ये वाहिगुरू शब्द क्योंकि हिंदू अवतारां दे नां जोड़ के बनाउणा सी, सिखां नूं हिंदू बनाउणा सी, इस करके वाहिगुरू शब्द की वडियाई इन्नी ज़्यादा दसदी। कौन सिखां दे रोम रोम विच वाहिगुरू शब्द रब दा नाम करके वस गया है। पर गुरमत विच, गुरु ग्रंथ साहब विच जां गुरु साहिबान द्वारा जां भगतां द्वारा कदे भी किते भी वाहिगुरू शब्द का जिक्र नहीं किया होया। वाहिगुरू नाम को जपेगा सो परमेश्वर में जाए समावेगा, सो वाहिगुरू हो जावेगा। तो फिर बाबे जी पर्दा तनाए दिता, फिर कनात ताण देती। हुण देख लो भी किन्नी क जगह हो, 5 10 20 40 फुट होएगी। हुण तुसीं कहानी अगे सुनना। ते सब समग्री पास रखा लई पृथ्वी ते आसन करके 2 चादरां लैके पद्म आसन पर विराज हुक्म दिया, अंदर कोई आवे नहीं। हुण एक गल है, पर्दे टाण दिते, अंदर आउणा मना कर दिता। हुण अंदर की होया, ए साखीकार भावें बाबा बुढ़ा जी तो कहा लैण, भावें श्री चंद या किसी होर तो कहा लैण, कल्पना है ना। अपने मन दीआं गल्लां जो मर्जी कहानी बनाओ, जो कहानी बनाउणी किहड़ी औखी है। पर जब पर्दा टाण दिता, गुरु नानक पातशाह के मुख चों आप कढ़ा रहे अंदर कोई आवे ना, फिर अंदर की होया तुहानूं की पता। हुण अगे देखो की कुछ करदे ने, क्योंकि वीर ही जानना चाहुंदे सी ज्योति जोत किवें समाए, आखिरी समा किवें होया। ते अज असीं उस वल वध रहे हां। आओ अगे देखदे हां की होया। चादर लैके पद्म आसन पर विराज हुक्म दिया, अंदर कोई आवे नहीं। सब सिख परिवार बाहर बैठे जां एक पहर रात रही सी तां बाबा जी ध्यान में लीन हो गए। हुण इन्हां नूं को पुछो, अंदर तां बाहर तां पर्दे ताणे होए ने, कनातां लाइयां होईयां,
बाबा जी अंदर ध्यान विच लीन हो जां नहीं लीन होए, बाबे बुढ़े नूं कित्थों हुक्म मतलब टैलीफोन आ गया, किवें जाण गए कि गुरु साहब हुण ध्यान विच लीन होए हैं। कहानी बनाई जाओ, क्योंकि असीं मूर्ख आ ना, असीं इदां समझी जानी आ, जो मर्जी सानूं सुनाई जाओ। सो वो ध्यान में लीन हो गए तो श्री निरंकार सर्व कटा के जाननहारे ज्योति स्वरूप पतत पावन चतुरभुज गरड़ दी सवारी चढ़ आए। एक जानवर है गरड़, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ के आए। जिवें गणेश जी की सवारी चूहा है, जो गणेश है ना, जदों गणेश पूजा होंदी है ਉਹਦੀ सवारी चूहा। एक बार की मैं कंपनी च काम करदा सी ते गणेश की पूजा हो रही सी, तो की होया उत्थे फ्रूट रखा होया सी, तो उत्थे चूहे बहुत सन। वो चूहे केले कूले चक के उत्थों खा गए। और मैं क्या भी चूहियां दी मारन दा मैं प्रबंध करना, मैनूं उदों पता नहीं सी भी ये गल बई ये कोई इन्हां दे पूजनीक हन चूहे। वो जिहड़ा वो पुजारी सी पंडित, वो मैनूं कहण लगा कि हाले चूहियां नूं नहीं मारना। क्यों? क्योंकि गणेश जी नूं बिठाया होया है, गणेश जी दा वाहन चूहा। भी जे चूहे नूं मार दिता तो गणेश जी की करोपी हो जाएगी ना। तो मैं ये गल तां सुना रहा, ये प्रैक्टिकली मेरे नाल हैपन होया, ये गल होई। तो कहंदे भी केले खा ले तो होर लिया के रख देंगे, वो अगे फ्रूट रखते हैं, मूर्ति के अगे फ्रूट रखते हैं। तो चूहे बहुत ज़्यादा सी, बड़े बड़े चूहे सन, वो केले वो चटम कर गए। तो इस तरह करके भाई आ जिहड़ा रब जी आए ने, वो गरड़ ते चढ़ के आए ने, गुरु नानक पातशाह नूं लैण आए ने। गरड़ दी असवारी चढ़ आए, जहाँ कनात में आए तां बड़ा प्रकाश हुआ। हाँ, प्रकाश तो देख सकते बाबा बुढ़ा जी जां होर संगतां जिहड़ियां बाहर बैठियां सन। कोट सूरज चंद्रमा जैसा तां श्री गुरु नानक जी को दर्शन आ दिता। सचखंड में बड़ा जस हुआ। भक्त कहण लगे, धन श्री नानक जी हैं जिसको ठाकर जी आप मात लोक से लेने गए हन। तां पवन से चलन वाला सुख आसन पर दख पर खद ले आए। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सब देवते इंद्र वर्ण कुबेर तो लेकर सभी आए। मतलब 33 करोड़ देवते सारे आ, सभी आए। लिखा आगे सब भगत आए, सब 33 करोड़ देवते आए। लो जी, कनाद के अंदर 33 करोड़ देवते आए। हुण कहणगे जी उन्होंने आत्मावां आईयां सी, उन्हीं किहड़ी जगह। मतलब बाबा बुढ़ा जी नूं किद्दां पता लग गया कि आए? जे शरीर आए तो कित्थे बैठे, जे आत्मावां आईयां तो बाबा बुढ़ा जी कल्ले कल्ले ने आके हाज़री लाई सी। कोई गपौड़ छड्डणे आ, किसी दे नां ते छड्डी जाओ। सिखां ने किहड़ा दिमाग वरतना? गुरबाणी तो साडे रंचक मात्र भी साडे हिरदे विच नहीं वसी है। सानू जो कहानी सुना दित्तो, 33 करोड़ देवते आ गए, वो कनाद दे विच आ के गुरु नानक पातशाह नूं लैण आए। अच्छा, हो रहा है भगत ध्रू प्रहलाद धन्ना कबीर सैन नामदेव बेणी पीपा सर्वत मुनि सिद्ध मंडल गोरख थी आद लैके गण गंधर्व आठों लोक नाल आए। श्री ठाकर जी की आज्ञा पाकर शब्द लगा होवन, कई तरह के वचंतर लगे वजने। तां सब कनात दे अंदर शब्द वचंतर का हुआ। श्री गुरु जी का ध्यान खुल गया। हुण तक गुरु नानक पातशाह जी अंतर ध्यान सन। ये बाबा बुढ़ा जी नूं कनात दे बाहर बैठिया पता नहीं किवें पता लग्या भी ये सारी कहानी उन्हां दे नां ते सुनाई जा रही है। सी तां गुरु नानक पातशाह नूं पता ही नहीं भी इन्ने लोग आए, पर बाबा बुढ़ा जी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हां नूं पता। तो श्री गुरु जी श्री निरंकार जी के चरणों पर मत्था टेकिया। लो जी, ये भी कनाद दे विचों इन्हां नूं पता लग गया। ते हथ जोड़ कर कहा, मैं बलिहार जावां जी मेरे तुछ सिख पर आप ने कृपा करी है जी। मैं कौन कीट हाँ? तां श्री ठाकर जी कहा, हे नानक भगत तेरी भगत ते मैं बहुत प्रसन्न हाँ। ते मैं तेरे को बख्शिया है, ते जो कोई तेरा नाम लेगा उसको मैं अपने लोक में वास देवांगा। कि गुरु नानक पातशाह ने
कदी किते अपना नाम जपाया। रब दे मूँह कढ़ा रहे हो भी जेड़ा गुरु नानक दा नाम जपेगा उसनूं अपनी मैं दरगाह विच जगह देवांगा। कमाल करी जा रहे ना। वास देवांगा सो कोई तेरी बाणी पढ़ेगा और सुनेगा सो मुक्त होवेगा। श्री परमेश्वर जी की आज्ञा साथ श्री गुरु जी का चलाना हुआ। शुभ सम्मत राजा विक्रमी 1569। ये गलत लिखिया होया। इस हिसाब नाल तां गुरु साहब की उम्र सारी 43 साल की बनती है। ये गलत लिखिया गया, पता नहीं प्रिंट गलत होया। ते असुवदी थिती 10वीं के दिन अमृत वेले पहर रात रहिंदी श्री परमेश्वर जी के कीर्तन विच आनंद धुनी नाल सर्व कला के घर में गुरु नानक जी श्री ठाकर जी की देह में अथवा जोत के विखे लिवलीन होए गए। ज्यों जल में जल अपेद हो जाता है तैसे ही ठाकर जी में एक रूप हो गए। श्री नानक ठाकर जी नानक जी को अपने अंगा में मिलाए लिया तां फिर उत्थे परिवार विच कहाए पै गई। सब एकत्र होए कर लगे वैराग करने। तो इतने में श्री बाबा जी के मुरीद पठान आए। वो कहन हम बाबा जी का दीदार करेंगे। हिंदुआं कहा अब तुम्हारा समा नहीं, तो पठाना कहा हमारा पीर है ते असीं जरूर दीदार करांगे। हुण देखो अगे की हुंदा, कौन संस्कार करदा है, कौन दबाउंदा है, अगे असीं जाणदे हां। और जो पीर दा राह है सो हम करांगे। तां हिंदू मुसलमानां दा झगड़ा वध गया। हिंदू कहण असां नहीं देखण देना, मुसलमान कहण असां दीदार करना है। बहुत वाद हुआ। पठान कहण गौर मंजल करांगे। तां विचों भले लोग कहा अंदर चल के देखो तां सही, जां देखिया तां चादर ही है, बाबे दी देह नहीं। दोहां दा झगड़ा रह गया। जितने सिख सेवक थे सो सब राम राम कर उठे। सिफतां करन वाह बाबा तू धन है। सब कहन श्री नानक जी प्रतख परमेश्वर दी मूरत सी, उसकी कुदरत लखी नहीं सी जांदी। ते असां थे भी ना कीती। ते मुसलमान भी बाबा जी दा खेल देखण लगे। सिफतां करन धन खुदाए है, तां धन बाबा नानक जी है जिस दी कुदरत लखी नहीं गई। हिंदू मुसलमान सब तारे हैं। फिर हिंदुआं अद्धी चादर लैके विमान ते रख के चिखा में जलाई ते मुसलमाना अद्धी चादर दफन कीती। दोहां आपो अपने धर्म कर्म कीते ते बाबा जी बकुंठ को सण देह गए हैं। ते श्री बाबे जी के दे चलाने दी कथा बाबे बुढ़ा जी श्री गुरु अंगद जी ते वाले को होर संगत दे हजूर सुनाई। तां होर कथा भाई वाले सुनाई। तां श्री गुरु अंगद जी ने श्री गुरु नानक जी दे अगे मत्था टेकिया ते कहा सुनो भाई सिखो, जो कोई सिख श्री गुरु जी दे पंथ में आवेगा ते बाणी पढ़ेगा, धर्म कर्म में रहेगा, श्री गुरु जी की साखियाँ सुनेगा व सुनाएगा, सो सदगति को पावेगा, अंत को सतगुरु के लोक में जावेगा। अते भाई वाले मत्था टेकिया, जो इसको प्रेम नाल लिखावेगा सो जीवन मुक्त होवेगा। सो ए भाई वाले वाली काल्पनिक साखी, काल्पनिक भाई वाला ते काल्पनिक ही साखी हुई, वाला कोई होया ही नहीं। हुण जिहड़ी गल असीं इत्थे समझणी आ कि यह गुरमत दा किहड़ा विधान है। सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच सानू जीवन जीउण दी जाच दसी है। दुख सुख दोए कपड़े क्या, सारा कुछ साडे सतगुरां अपने सीने ते झल्लिया। पंचम पातशाह ने शहीदी दिती है। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने लड़ाइयां लड़ियां, फिर लड़ाइयां तो एक तरह ना किनारा करन लई जां खून खराबे तो वचन बचाउण लई वो अमृतसर शहर छड्ड के कीरतपुर चले गए।
गुरु तेग बहादुर की शहादत होई है सच धर्म की खातर, धार्मिक आज़ादी की खातर। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अपना घर काट भी छड्डना पिया। चारों साहिबजादे शहीद हो गए। अपनी उन्हां दी शहादत, माता की शहादत, बई जे इहो जे उड़न खटोले बनाने सी करामात गल्लां, तो फिर तो कुछ भी कर सकते सी। किसी नूं अन्ना कर दिओ, किसी नूं दा दिमाग काम करना बंद कर दिओ। यह सब कुछ ਇਹ कहानियां उन्होंने लिखियां जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह नूं छुपाउण दी, इत्थों खत्म करन दी साजिश रची, जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह नूं अंत विच की कीता उन्हां नाल हाले तक संसार दे लोकां नूं पता नहीं। अज किसी दे मरण तो बाद शरीर ना मिले जां किसी घर दे बंदे कह देण कि बापू जी राती मर गया सी, चादर पाती सी उत्ते, सवेरे देखिया तां लाश है नहीं, कोई दुनिया दा बंदा मन्नेगा कि भई ये तुसी बापू जी नाल कोई अणहोनी कीती है, जमीन दी खातर, घर दी खातर, किसी लड़ाई दी खातर? इदां किदां हो सकदा? राती बापू मरिया और तुसी उत्ते चादर पाई कमरे च पिया सी, सवेरे तुसी देखिया बापू उत्थे है नहीं। हुण लोकी जिहड़े नंबर 2 का काम करके कह देण बापू तां गुरु नानक दी तरह सने शरीर उत्ते गया। किहड़ा राह आ? किहड़ी पुलिस, दुनिया दे किहड़े लोग मन्नणगे कि बापू सने शरीर तहां चला गया? लोकां ने जाके थाने करनी शिकायत और पुलिस ने आके सारे घरदिਆਂ ਨੂੰ बन के लै जाना। जदों उन्होंने पुलिस रिमांड लिया, सारिਆਂ ने सच सच बख्श देना कि बापू नूं मार के तो नहर विच सुट्टिया सी, बापू नूं मार के फलानी जगह दबिया होया, बापू सण दे ही नहीं गया। सारे जदों पुलिस ने कटापा चाढ़िया ना, सारिਆਂ ने बक उठना। पर पता नहीं असीं अपने सतगुरां बारे इदां किदां सोच लिया कि वो सणे दे ही चले गए। उत्थे कईयां साखियां लिखिया थल्ले फुल पए सन। वाह कमाल, इत्थे फुल नहीं, इत्थे सिर्फ चादर पई सी, चादर वंड लई, उन्होंने दबाती, उन्होंने जलाती। सो वीरां दा जो कहना सी वो मैं कर दिता कि वाले वाली जन्म साखी विच गुरु नानक पातशाह दा शरीर नहीं सी मिलिया। बाकी जिन्नी कहानी है काल्पनिक है। 33 करोड़ देवते आ गए, फलाना आ गया, राग रंग होया, बेमान आ गया, जो मर्जी गप्पा मारी जाओ, जिहड़ियां गल्लां हो नहीं सकदियां जिन्नियां मर्जी करी जाओ। सो अज दी विचार असी इत्थे संकोचदे हां। सब झूठ है, कूड़ है। की हैपन होया, की भाणा वरतिया गुरु नानक पातशाह दा, हाले तक किसी नूं पता नहीं। होई तां कोई अणहोनी है, पर खुल के कोई कह नहीं सकता, क्योंकि साडा सारा पुजारी लाना इत्थे ही अटकिया होया कि सण दे ही जो है गुरु नानक पातशाह चले गए। कित्थे सचखंड, पता नहीं इन्होंने सचखंड कित्थे बनाया होया, मेरी समझ तो बाहरी गल है। गुरमत दा सचखंड कोई अलग जगह नहीं, इत्थे धरती ते सब कुछ है, इत्थे जीवन दे विच सब कुछ है। सो आओ भुल्लां चुकां दी माफ़ी, खोज है, विचार है, करदियां होया कई गलतियां हो जांदियां ने। ते यही बेनती करांगा, जे तुहानूं ये खोज कर चंगा लगदा मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं साझा करो और अगे इसनूं पसंद भी करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।